Yes, we can see you. Are we recording now, All right, Sabaji? perfect. Yes. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, welcome all. We have Alhamdulillah 36 people in the room with us. Alhamdulillah. Alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala make this session beneficial for all of us. Ameen. So Ameen. Um, let's begin with our intros and special shout out thank you for Hafsa for saving this session for me. Um, लाइफ हैपेंस आपको आप कुछ और प्लान कर रहे होते हैं और एकदम से जैसे अभी बस कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं जाती हैं बहुत दफा सो शी rescued this session at the very last moment and she offered her Zoom. Thank you so much, Jazakallah khair. And she is our mentor and an amazing childbirth educator and doula herself and a lactation professional offering services worldwide. Alhamdulillah, alhamdulillah. So Jazakallah khair, Hafsa. This is a collaborative session, inshallah. So, okay, we have Dr. Maheen with us, and I can see some of the mothers who have taken classes in mashallah. I can see them in the room. I can see some of the new mothers who will be joining in the May cohort, inshallah. So, welcome to you all, and let's begin. मैं अपने इंट्रो से स्टार्ट कर देती हूँ ताकि फिर डॉक्टर माहिन she can like take it from there inshallah. My name is Hira Hassan and I am a certified Amani childbirth educator, a mother of three. First of all, सबसे पहला introduction तो ये है कि I'm a mother of three, alhamdulillah, and I am working as a Amani childbirth educator and doula. Those of you who know, अगर आपको नहीं पता कि childbirth educator कौन होता है या डूला क्या होती है तो please do type in the chat box. But for all those who don't know, simply we help and support and educate um, expecting couples for pregnancy, labor, birth, breastfeeding, postpartum. So वो सारा कुछ we cover that and we help them, we educate them, we support them, we assist them so that they can have those experiences smooth and efficient. Inshallah. So heading over to Dr. Mahi. So I'm Dr. Maheen and I'm a pelvic floor therapist. And thank you so much to Hira for inviting me. And also thank you so much to Hafsa Baji for supporting pelvic floor therapy right now. And I just very recently started pelvic floor therapy again. I was on maternity leave after my baby for like 2.5 years. And when I started again, तो फिर उसके बाद there was lots of resistance from different gynecologists, from other professionals as well. They were like, what is pelvic floor therapy? Like, what are you trying to introduce? Ye, wo. But she has been so supportive and she has, like make it so much easier for me to spread the message as well. So thank you so much to her and thank you so much to you. And so many people come to me and they're like, Hafsa Baji told us to go to you. They were like, yeah, uske paas ja. So I think when all professionals work in collaboration with each other, then the only people who are getting benefit is the women of this community who need it the most. So I'm glad to be able to do this session and hopefully it will be beneficial for all of the ladies who have joined us today, inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं खुद भी ये बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से ये एक तरीका ही बहुत अच्छा है क्योंकि मैं खुद भी चाह रही हूँ कि मैं अम, आपसे आपसे जानूं कि क्या क्या ऑफर होता है और मैं खुद भी लर्न करूं और ये इससे अच्छी क्या बात होगी कि हम जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ उसी के साथ औरों का भी फायदा हो जाए और हम सभी एक साथ अपनी कम्युनिटी के लिए और औरतों के लिए उनकी हेल्थ के लिए एक बेनिफिशियल सेशन इंशाल्लाह कंडक्ट करें सो प्लीज हाँ, आप और कैसे when everyone works in collaboration together, हर कोई अपने अपने हिस्से का काम कर रहा हो तो आई थिंक अल्टीमेटली इट बिकम सो मच इजियर. बहुत से ऐसे मसले होते हैं जो कि मैनेज हो जाते हैं. बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि नहीं उससे पहले हल हो रहे होते हैं जो कि बाद में इजी हो जाते हैं टू हैंडल, राइट. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है वही बात है ना कि
ऑल ऑफ ये सारी चीजें हैं ये एक अम्ब्रेला के अंदर। व्हेन इट कम्स टू वुमेन हेल्थ, इट्स ऑल कमिंग अंडर वन अम्ब्रेला। और हमारे पास डायरेक्टरी में होना, सपोर्ट होना, people we trust and we can refer to, that is something that is something valuable, very valuable. And I was so happy that alhamdulillah there are um, there are pelvic floor therapists now, alhamdulillah, who are actively working and offering their support. So that is something that is very, very needed here, very much needed here. So बहुत शुक्रिया उसके लिए। All right, so should we get started, Hira? जी बिल्कुल, आप स्टार्ट करें इंशाल्लाह। We are excited to So learn I have from you. small presentation which I made. It's not like a presentation, it's more like key points for me to share with everyone. So what I'm going to do is I'm going to share my screen with you people and let me know if you can see it, okay? जैसे होता ये है कि ये जो आई नेवर थॉट कि मेरे साथ ये कभी होगा, बट ये जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है इस पे कभी कभार आके मैं भी स्टक हो जाती हूँ एंड आई स्टार्ट फीलिंग लाइक कि मेरे पेरेंट्स जब स्टक होते थे तो आई वुड बी लाइक, मतलब व्हाट्स हार्ड इन इट एंड इट्स जस्ट हार्ड टू बिलीव कि मेरे लिए मुश्किल होने लग गए। बट या इट्स हम्बलिंग, इट्स वेरी हम्बलिंग। मुझे पता है, मैं आपकी बात अच्छा, से बहुत ज्यादा, मैं आपको नहीं पता मैं कितना ज्यादा, मेरे ख्याल से मुझे भी ये सारे इश्यूज आते हैं, ये सब चीज है, ये प्रॉब्लम आती है। और आई एम सो ग्रेटफुल कि हफ्सा होती है हमेशा, कि वो सॉर्ट आउट you करती know है, फिर when I हम was डिसाइड trying to और join, नेक्स्ट नहीं। it was kept on telling me कि आपके कैमरा परमिशंस नहीं है and I was searching like किधर है मेरी कैमरा परमिशंस, कि किधर है मेरी कैमरा परमिशंस, and I was like, but yeah, all right, अच्छा, so you people see my screen now? Yes. All right, perfect. ओके, तो थोड़ा सा शुरू करते हैं कि पेल्विक फ्लोर थेरेपी होता क्या है। इसको बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर वर्ड्स के अंदर हम एक्सप्लेन करें, सो दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ फिजिकल थेरेपी, ओके। सो इसके अंदर वी टारगेट द पेल्विक फ्लोर, और जिसके अंदर हम उसके पेल्विक फ्लोर के जो भी सिम्टम्स होते हैं, पेन होती है, वीकनेस होती है, टाइटनेस होती है, कुछ भी होता है, उसको हम मैनेज कर रहे होते हैं। देयर अदर थिंग व्हिच आई वांट टू ऐड ओवर हियर इज कि जो मैं अपनी प्रैक्टिस में भी बहुत ज्यादा देखती हूँ, बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के डिफरेंट किस्म के मसले होते हैं जो कि पेल्विक फ्लोर से आ रहे होते हैं एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ खवातीन को नीज की दर्द ना कभी भी नहीं जा रही होती, लाइक नीज में दर्द रहती है, नीज में दर्द रहती है, वो उसके लिए मेडिसिन भी खा लेंगी, वो उसके लिए फिजिकल थेरेपी भी ले लेंगी, ऑर्थो को भी दिखा लेंगी, इंजेक्शन भी लगवा लेंगी, दे ट्राई टू डू एवरीथिंग अबाउट द नीज, बट बट क्या स्किप कर देंगी? पेल्विक फ्लोर स्किप कर देंगी। सो पेल्विक फ्लोर की टाइटनेस की वजह से उनके नी के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं विच कीप ऑन रीअकरिंग अगैन एंड अगैन एंड अगैन। सो दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ हाउ पेल्विक फ्लोर, कहने को तो पेल्विक फ्लोर है बट इट इज लाइक एनकम्पसिंग एवरीथिंग एल्स इन द बॉडी। शोल्डर्स की बात कर लें या ब्रीदिंग की बात कर लें, या बिकॉज दिस इज द सेंटर ऑफ द बॉडी, राइट। तो जिस तरह अगर आप लोग को थोड़ा सा फिजिक्स का पता हो, एक चीज को सपोर्ट करने के लिए द सेंटर, द बेस नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग। अगर आपका सेंटर ऑफ बैलेंस है तो आपका टॉप एंड बॉटम इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू इश्यूज। जब भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वी ऑलवेज लुक एट देम विद द होल पिक्चर। अगर वो कहती है ना कि मुझे पेल्विक फ्लोर के इश्यूज हैं, तो ये कंफर्म्ड बात होती है कि उसे कहीं ना कहीं पाँव के, हिप्स के, नीज के, शोल्डर्स के, चेस्ट के, लो बैक के मसले जरूर होंगे। बिकॉज बॉडी ऐसी डिजाइन नहीं होती कि हम कहें कि सिर्फ पेल्विक फ्लोर है तो पेल्विक फ्लोर के ही इश्यूज हैं। सो पेल्विक फ्लोर थेरेपी के अंदर भी टारगेट द होल बॉडी इश्यूज या द होल बॉडी सिम्टम्स जो कि पेल्विक फ्लोर के थ्रू आ रहे होते हैं। कुछ स्पेसिफिक पेल्विक फ्लोर के मसले भी होते हैं जो कि खवातीन में बहुत ज्यादा कॉमन है, जिस तरह यूरिन के मसले हो गए, इंटीमेसी के इश्यूज हो गए, स्टूल पासिंग के इश्यूज हो गए, चाइल्ड बर्थ के मसले हो गए, फर्टिलिटी इश्यूज हो गए, पीरियड्स रिलेटेड हो गए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड थ्रू पेल्विक फ्लोर थेरेपी।
ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो व्हाट इज द पेल्विक फ्लोर? पेल्विक फ्लोर होता क्या है? इट्स लाइक अ हैमक, ठीक है। ये हमारे जो सिट बोन्स होती हैं, ये जो पेल्विक फ्लोर की बोन्स होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास जितने भी मसल्स या ऑर्गन्स जो कुछ भी पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ पेल्विक फ्लोर। उसके अंदर मसल्स भी होते हैं, लिगामेंट्स भी होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं, रिप्रोडक्टिव के भी होते हैं, रिप्रोडक्शन के, और डेफिकेशन के भी होते हैं, यूरिनेशन के भी होते हैं, हर किस्म के होते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज अ पेल्विक फ्लोर। ये जो मैंने आप लोगों को एक पिक्चर यहाँ पे शेयर की है ना, उसको शेयर करने का मकसद ये है कि इसके अंदर ये जो आपको ये जो 1 2 3 4 5 6 7 नजर आ रहा है ना, ये वो मसल्स हैं जो कि पेल्विक फ्लोर के अंदर होते हैं, जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जिस तरह हमें हमारी बॉडी के बाकी सारे मसल्स के अंदर टाइटनेस हो जाती है, ये ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, ये नॉट्स बन जाती हैं ना, उसी तरह पेल्विक फ्लोर के अंदर भी नॉट्स बन जाती हैं और ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं और टाइटनेस हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा पेशेंट से कभी कभार दर्द दे रही होती है। कुछ खवातीन शो करती हैं क्लिनिक में, उनके पेट की दर्द नहीं जा रही होती है, कमर की दर्द नहीं जा रही होती है, हिप में दर्द हो रही होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वाली दर्द उनके पेल्विक फ्लोर से आ रही होती है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 किस्म के जो नंबरिंग हुई हुई है, ये ट्रिगर पॉइंट्स को हाईलाइट करिए कि कहाँ कहाँ ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। कुछ खवातीन को कंप्लेन ये होती है, बल्कि कंप्लेन क्या, हिस्ट्री लो तो पता चलता है, दे डोंट इवन मेंशन इट समटाइम्स, कि उनको इंटीमेसी के अंदर ओपनिंग पेन बहुत ज्यादा आ रही होती है। दैट इज बिकॉज उनकी ओपनिंग के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, देयर इन स्पैज्म, दे हैव ट्रिगर पॉइंट्स इन देम, स्पेशली इफ दे हैव गिवन बर्थ। ऑल दे नीड इज अ सिंपल रिलीज, एंड विदाउट दैट सिंपल रिलीज पता नहीं वो कितने अरसे से सफर कर रही होती हैं, कितना उसको बर्दाश्त कर रही होती हैं, कितना हमने उस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया होता है कि ये तो सबको होता है, ये तो नॉर्मल है, जबकि इसका बहुत सिंपल, यू हैव टू मैनेज इट। कुछ को पी करने का इशू आ रहा होता है, पी शुरू नहीं की जाती, या पी करने के बाद लगता है कुछ रह गया है अंदर, कंप्लीटली खत्म नहीं हुई, ये बार बार आती है, बर्निंग होती है, मुश्किल से आती है। ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू योर पेल्विक फ्लोर। टेलबोन की अगर आपको पेन हो रही है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो मे बी योर पेल्विक फ्लोर के मसल्स आर टाइट। स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर पेल्विक फ्लोर इन टर्म्स ऑफ मसल्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ मसल्स। अगर अंदर एक मसल्स का ग्रुप है जो बहुत टाइट है, जिसने हर चीज को ऐसे ग्रैब करके रखा हुआ है, it is going to give you fertility issues, it is going to give you intimacy issues, it is going to give you bowel and bladder issues, it is going to give you pain. Body always gives us signals, we have just normalized these signals. चाइल्ड बर्थ में बहुत से खवातीन को मसला आ रहा होता है। आई थिंक हिरा कैन वाउच फॉर मी कि बर्थ प्रेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स कि हम उसमें यही तो करते हैं, prepare, relax and strengthen their pelvic floor for optimal birth। ऐसे ही है ना हिरा? बिल्कुल। मेरा जो पहला सेशन होता है ना, उसमें ही हम बात पेल्विक फ्लोर रिस्पॉन्सिवनेस की करते हैं, इंट्रो देते हैं कि यस, इट्स नॉट अबाउट, because there is such a big misconception that tighter is better, and people and mothers are being told that you need to perform 100 kegels a day or stuff like Yeah, that. that But is so that wrong. is not working for birth. That is not something that is helping for birth. So for birth we need to, first of all, हम किसी को भी, जो आपकी बात है ना, ये कि हम, सबसे अहम जो बात इसमें सबको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो ये डॉक्टर माहिर ने ये बात कही है ना कि आपकी बॉडी में अगर कहीं और पेन हो रहा है तो उसका ताल्लुक किसी और जगह से हो सकता है। इस बात को समझने से ना आई थिंक बहुत सारे मसले क्लियर हो जाएंगे, मतलब हर रेल्म के, चाहे वो कोई भी, क्योंकि हम अपनी बॉडी को जो हमने सेपरेट किया है ना, वही हमने उसके साथ सबसे बड़ी, आई गेस, कि जो नाइंसाफी करती है ना, वो अपनी बॉडी को सेपरेट, स्पेशलाइज्ड और बहुत ज्यादा उसको अलग कर दिया। और इतना इंटरकनेक्टेड है ये सब। जब मेरे पास कोई प्रेग्नेंट क्लाइंट मदर आती है, तो हम सिर्फ उनका, अब मदर्स का क्या होता है, यूट्यूब पे देख रही हैं, एक्सरसाइजेस देख रही हैं कि हम स्क्वाट्स कर लें, हम बटरफ्लाईज कर लें, हम पेल्विक से रिलेटेड कर लें एक्सरसाइजेस। द थिंग इज योर होल बॉडी इज कनेक्टेड। सो व्हेन अ मदर कम्स टू मी, मैं उसके पाँव की देखती हूँ अलाइनमेंट कैसी है, बिकॉज दैट इज अफेक्टिंग द स्पेस इन हर पेल्विक फ्लोर, डायरेक्टली अफेक्टिंग दैट। Exactly. आपके शोल्डर्स, आप कैसे हंच करके बैठते हैं, आप ऐसे बैठते हैं, अभी जैसे मैं बैठी हूँ बहुत ही बुरे पोस्चर में बैठी हूँ इस टाइम यूं करके,
तो ये किस तरह से आपको इफेक्ट कर रहा है, और ये सारी चीजें उनकी असेसमेंट होती है, एंड देन वी कैन गिव देम, इट्स नेवर अ वन साइज फिट्स ऑल। एंड रिस्पॉन्सिवनेस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर, नॉट कि हम हर किसी को बताएं, हमने पहले असेस करना है कि वेयर द मदर is she Lacking. over tight, and is she over, it's a hypotonic pelvic floor, so it needs to be assessed. Yeah, I agree with you. वही वाली बात के बहुत से बॉडी के दूसरे मसले, शोल्डर्स के, रिब्स के, पाँव के, नीज के मसले पेल्विक फ्लोर से आ रहे होते हैं। ऑल्सो आपने बहुत अच्छी यहाँ पे हिरा बात की। क्लिनिक में इतनी खवातीन आकर ये समझ रही होती हैं कि उनके पेल्विक फ्लोर के मसल्स लूज हैं या टाइट हैं, तो वो कहती है कि उनको इंटीमेसी में भी फील नहीं होता, या उनकी 2 3 4 नॉर्मल डिलीवरीज हो गई तो उनके तो मसल्स लूज हैं। जबकि what they don't understand is कि your muscles can be loose but you can still have a hypertonic pelvic floor, जिसका मतलब है कि उसकी टोन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। जो मसल, your pelvic floor actually needs to be relaxed even if it is loose, and vice versa. Your pelvic floor could need strengthening even if it is tight, because tight does not mean strong and loose does not mean relaxed. So this is very an important concept to understand कि loose tight and strong weak का बड़ा फर्क है। Okay, so let's move on. कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं हमारे पास पेल्विक फ्लोर के, जो कि रेड फ्लैग्स होते हैं अगर आपको लीकेज हो रही है, एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ। so we have this interesting pattern in the clinic कि पेशेंट्स आएंगे किसी और मसले के साथ, कमर में दर्द ये वो, और मैं वैसे ही कहूंगी अच्छा चलिए लीकेज का तो बताएं, तो वो भी लाइक हाँ लीकेज भी होती है। एंड मैं उनको कहती हूँ आप मेरे पास कमर दर्द के लिए आ गई हैं क्योंकि आपको लगा कि कमर दर्द एक अहम मसला है जिसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं लगा कि लीकेज एक अहम मसला है जो मुझे डॉक्टर को बताना चाहिए। बिकॉज लीकेज को हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया हुआ है कि किसी के 2 4 5 कतरे लीक हो जाते हैं, या वो कहेंगे वो तो बस जब कभी नजला जुकाम होता है, खांसी लगी हो तो लीक हो जाता है, वो तो बस सर्दियों में लीक हो जाता है, वो तो बस मैं पानी ज्यादा पी लूं तो लीक हो जाता है, ये बेटा वो तो मेरी उम्र इतनी हो गई है ना तो लीक हो जाता है। नो, आपकी कोई भी उम्र हो, आप कुछ भी कर रही हैं, लीकिंग इज अ रेड फ्लैग। एक कतरा, एक सिंगल कतरा भी आपका यूरिन का लीक नहीं होना चाहिए किसी भी उम्र में। दैट्स अ रेड फ्लैग कि आपका पेल्विक फ्लोर वीक है। और जब मैं लीकेज की हिस्ट्री लेना शुरू करती हूँ तो मैं पूछती हूँ जो भी पेशेंट का नाम होता है XYZ के, आपको पहला कतरा कब लीक हुआ था? मोस्ट ऑफ द टाइम उनको याद नहीं होता। वो कहती है हाँ 6 महीने पहले बढ़ गया था, बट पहला कतरा कब लीक हुआ था किसी को याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी एक आधे कतरे को तो हम कुछ कंसिडर ही नहीं करते। खवातीन तब आना शुरू करती हैं जब या तो पूरे पूरे पजामे खराब होने लग जाते हैं, या अर्जेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, या कई साल मिजरेबल गुजर जाते हैं, या कोई और साथ में मसला आना शुरू हो जाता है। तो जब शुरू में हम उसको 15 15 साल, 20 20 साल, और ये मैं सही बता रही हूँ 15 15 साल की प्रेजेंटेशन देखने को मिलती हैं कि लीकिंग करते बेटा नमाज पढ़ते बार बार पजामा बदलना पड़ता है। तो इस मसले को जो है ना हल करने का जरूरत है। अगर आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही है, आपने खांसी की, आप एकदम चल के जा रहे थे, आपने कोई घंटा वॉक कर लिया, आपको लगा कि आपका कतरा लीक हुआ है, दैट इज द फर्स्ट साइन यू नीड टू स्ट्रेंथन योर पेल्विक फ्लोर। एंड अगर कोई प्रेगनेंसी से गुजरा है, किसी की कोई हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी है, तो उसको 100% ऑफ द टाइम पेल्विक फ्लोर थेरेपी की जरूरत है, क्योंकि पेल्विक फ्लोर की वीकनेस देखने को मिलती है। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि प्रेगनेंसी सब जो है बॉडी को वीकनेस देती है, तो फिर इसमें क्यों शक रहता है कि आपको स्ट्रेंथनिंग की जरूरत होगी। दूसरी बात, अगर आपको पेल्विक पेन होती है या आपको कमर में दर्द होती है, कितनी औरतें कहती है जी हमने एपिड्यूरल लगवाया तो हमें कमर में बहुत दर्द थी। माना एपिड्यूरल के डिबेट में नहीं हम जाते अच्छा है कि बुरा है, बट अगर आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे दर्द रह रही है काफी अरसे बाद भी, जी मैंने एपिड्यूरल लगवाया था तो मुझे दर्द रह रही है, दैट कुड बी योर पेल्विक फ्लोर की वीकनेस एज वेल, दैट कुड बी योर बैक मसल्स की वीकनेस एज वेल। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग जस्ट द एपिड्यूरल, आप उसकी स्ट्रेंथनिंग की तरफ आओ। फिर पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, भारीपन महसूस होना, ज्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता, कुछ लटकता हुआ महसूस हो रहा है, इन चीजों को अगर हम टारगेट ना करें तो दीज कैन लीड टू हर्निया। आप जितनी पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ इस चैट में है, सब सोचें, आप सबके इर्द गिर्द किसी ना किसी का आपने सुना होगा जिसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ हो, राइट? हर्निया बना ही क्यों? हर्निया हमेशा प्रोलैप्स से ही शुरू होता है ना, अगर हम पेल्विक फ्लोर की बात करें।
वो वीकन हुआ, वजन उठाया, गलत तरीके से उठाया, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हुई, भारीपन से शुरू हुआ, थोड़ा सा निकलना, ज्यादा करते 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 स्टार्ट लीडिंग टू हर्निया। आगे इसकी डिटेल में मेरे पास और एक इमेज है। अ, एक मिनट, ये वाली। सो ये वाली पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स को थोड़ा सा इस तरह से समझने की कोशिश करें कि जो हमारे पास प्रोलैप्स होता है ना, वो किसी भी चीज का हो सकता है। वो आपके सर्विक्स का भी हो सकता है, वो आपके ब्लैडर का भी हो सकता है, वो आपके बाउल का भी हो सकता है। मतलब पेल्विक फ्लोर में जो जो चीजें पड़ी हुई है ना, वो यूट्रस का भी हो सकता है, वो किसी भी चीज का हो सकता है। जो भी चीज आप, या मल्टीपल चीजों का भी, जो भी चीज आपके पेल्विक फ्लोर में पड़ी है ना, अगर वो थोड़ी सी नीचे आने लग जाए तो उसको ग्रेड 1 कहते हैं। अगर वो ओपनिंग से थोड़ी बाहर आने लग जाए तो वो ग्रेड 2 होता है। आसान लफ्जों में बता रही हूँ, ज्यादा बाहर आने लग जाए तो ग्रेड 3 होता है, और पूरी बाहर आ जाए तो ग्रेड 4 होता है, जिसको हर्निया कहते हैं। मोस्टली पेशेंट्स मेरे पास आती हैं ग्रेड 2 पे, क्योंकि तब उनको नजर आना शुरू होता है। ग्रेड 1 ज्यादातर क्लिनिकल में पता चलता है, कफ टेस्ट वगैरह से। ग्रेड 4 पे फिर हमारे पास ऑप्शन सर्जरी की ही बचती है। But pelvic organ prolapse is one of those conditions which I feel sad about. That this is one of the most preventable conditions, but it is also one of the most common conditions and most neglected one. और एक दफा प्रोलैप्स हो जाए तो इट कैन नॉट ऑलवेज बी ट्रीटेड, इट हैज टू बी मैनेज्ड। तो मैनेजमेंट इज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। उसके बाद कुछ और कंडीशंस होते हैं जिनको हम पेल्विक फ्लोर थेरेपी में ट्रीट करते हैं। तो माहिन, ये जिस होता, तरह सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, ये होता किस, आप इसके कॉजेस पे मुझे थोड़ा सा बताएंगे? ये किस तरह से ये चीज होती ओके, क्यों है, ज्यादातर क्यों होती है प्रोलैप्स जो है? सबसे पहले तो प्रेगनेंसी आपको वीकन कर देती है पेल्विक फ्लोर को। इस बात को समझे, जब आप वीकन होते हैं ना, तो यू आर प्रोन टू गेटिंग किसी भी किस्म का मसला। और प्रेगनेंसी से भी ज्यादा हेरा आई वांट टू एम्फोसाइज इज द पोस्टपार्टम पीरियड। वो जो हमारे बड़े कहते थे ना कि चिला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्ट, उस बात में किसी हद तक विजडम थी, काफी विजडम थी। अर्ली रिहैब इज इम्पोर्टेंट, बट रेस्ट इज एज इम्पोर्टेंट एज वेल। दोनों तरह के पैटर्न्स मुझे क्लिनिक में देखने को मिलते हैं। Postpartum में sometimes women return to activities too soon without strengthening themselves. वो जिम चली जाएंगी, रनिंग शुरू कर देंगी, वेट्स लिफ्ट करना शुरू कर देंगी, या बच्चे को गलत तरीके से उठाना शुरू कर देंगी, या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है खास तौर पे सी सेक्शन के बाद, या वजन गलत तरीके से उठाते हैं। जब आप प्रेशर ठीक से मैनेज नहीं करते ऑन एन ऑलरेडी वीक स्ट्रक्चर, तो इट इज प्रोन टू गिविंग यू प्रोलैप्स। ठीक है, मेरे पास ना एक बहुत अच्छी सैनिटाइजर की बॉटल है जो कि मेरा मॉडल है फॉर ऑल माय पेशेंट्स टू टेल अबाउट प्रोलैप्स। ये जो नीचे है ना, ये समझो आपका पेल्विक फ्लोर है, और ये जो अंदर लिक्विड है ना, ये पेल्विक फ्लोर के ऑर्गन्स है। अगर आपका ऊपर यहां से सारा टाइट है, लिक्विड इज गोइंग टू कम आउट। ठीक है, 100% ऑफ द खवातीन के अंदर बर्थ के बाद ये वाला पोस्चर देखने को मिलता है, कंधे झुके हुए, ब्रेस्ट फीड करवा के, सैगी ब्रेस्ट की वजह से थकावट, स्ट्रेस। और फिर दूसरा, हम सब पाकिस्तानी खवातीन का स्ट्रेस लेवल आई थिंक दुनिया की तमाम खवातीन से ज्यादा है। तो उस स्ट्रेस लेवल की वजह से भी सबके जो शोल्डर्स है ना, वो ऐसे रहते हैं। सो जब एवरीथिंग ओवर हेयर इज टाइट, ब्रीद हम मुसलसल कंधों से कर रहे होते हैं, चेस्ट से तो हम ब्रीद करते ही नहीं है। हमने चेस्ट को लाफिज कहा हुआ है, हमने कहा हुआ है, इसका तो कोई काम नहीं है। रिब्स को हम इस्तेमाल नहीं करते, बेली ब्रीदिंग हम नहीं कर रहे होते, वी आर ऑलवेज यूजिंग आवर शोल्डर। सबके शोल्डर्स ऐसे होते हैं, खराब पॉस्चर होता है। एवरीथिंग इज टाइट ऑन द टॉप, there is going to be so much pressure on the bottom. अब इस तरह with the pressure on the top, it's already prone to coming out. अब आप गलत एक्टिविटीज कर रहे हो, आप वेट उठा रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, या आपको मुसलसल खांसी आ रही है, कफ हो रही है, स्नीज हो रही है, ऑल दोस हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज दे कैन लीड टू प्रोलैप्स। इसके अलावा चाइल्ड बर्थ itself is the is one of the most common causes of prolapse. ये जो हमारी बर्थिंग पोजीशंस हैं, जिससे मुझे, आपको, हफ्साबाजी को, हम सबको शदीद किस्म का इख्तिलाफ है, टू द पॉइंट कि इट बॉइल्स आवर ब्लड, कि ये जो लिथोटमी पोजीशन में सीधा लिटा के टांगे ऊपर करके बर्थ करवाते हैं, पर्पल पुशिंग करवाते हैं, जी पुश करें,
all those interventions, they lead to prolapse as well. So जब भी आप when you're straining too hard या constipation होती है, आप strain करते हो, मुसलसल जोर लगाते हो, that leads to prolapse. तो ये सब चीजें cause prolapse. I hope it's understandable now. जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया और मेक सेंस, एवरीथिंग All मेक right. सेंस। Okay, so there are some other conditions which we treat, जिस तरह अगर आपको बार बार बाथरूम भागना पड़ रहा है, हर 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, या घर से जाने लगे तो चलो वॉशरूम से हो आऊं, ये लीक होता है या हर वक्त फील होता रहता है, दिस इज नॉट नॉर्मल। प्लीज, खुदा का वास्ता है, दिस इज नॉट नॉर्मल। अपने इर्द गिर्द अपनी अम्मियों को पूछें जरा, अपनी खालाओं को पूछें, अपनी फुप्पियों को पूछें, अपनी फ्रेंड्स को पूछें। 9 आउट ऑफ 10 ऑफ देम विल बी लाइक, तो बेटा ये तो होता है। ये तो होता है ना, इससे मुझे बहुत चिढ़ है कि ये तो होता है, ये तो होता नहीं है, और ये होना नहीं चाहिए। अगर आपको फीसेस लीक हो रहे हैं या यूरिन लीक हो रहा है, वो तो बस एक दफा लीक हुआ था, वो फिर जब मैं छिले में थी ना, तो 2-3 दफा लीक हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। 1-1.5 साल हो गया, आपने उसके बाद कुछ नहीं किया, एक दफा एक रेड फ्लैग आया और यू लाइक ठीक हो गया था, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी ने इस वक्त आपको सिग्नल दे दिया था। इसका मतलब है चंद सालों बाद यू आर प्रोन टू हैविंग इट रीअपियर इन अ बिगर वे। तो जब आप ये सोचते हो कि छिले में मसला आके खुद ही चला गया था विदाउट डूइंग एनी इंटरवेंशन, तो फिर यू आर वेरी प्रोन टू हैविंग दो सिम्टम्स सालों बाद। मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाती हैं विदाउट करेक्टिंग पिछली प्रेगनेंसी का डैमेज। तो पहली प्रेगनेंसी तो आसान थी, दूसरी में शायद एज ज्यादा हो गई थी ना, तो इस वजह से मुश्किल हो रही थी। नहीं, इट्स बिकॉज यू डिड नॉट स्ट्रेंथन योर सेल्फ। यस, एज मैटर्स, बट ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। अगर आपका ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो रहा, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, डायरिया रहता है, प्रोलैप्स है, आपको इंटीमेसी इश्यूज है, इंटीमेसी इश्यूज आर अ रेड फ्लैग कि आपका पेल्विक फ्लोर का मसला है, जिसको हमने नॉर्मलाइज किया हुआ है। पेन होना या सेंसेशन में, प्लेजर में डिक्रीज आ जाना, यू डोंट फील प्लेजर एनी मोर, आपको उसमें कमी महसूस होती है, आपको डीप सीटेड किसी 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 पोजीशन में पेन होती है, आपको एंट्री पेन होती है, एनीथिंग लाइक दैट, इट्स अ साइन ऑफ पेल्विक फ्लोर गिविंग यू सिग्नल्स। आपके पेट में दर्द रहती है, स्वेलिंग रहती है, आपको बहुत पेनफुल किस्म के पीरियड्स अगर रहते हैं, या आपका सी सेक्शन का स्कार है जो टाइट है, ये सब छोड़ दें हेरा लो। सबसे कॉमन, अगर आपका पेट लटक रहा है, दैट इट सेल्फ मीन्स कि आपका पेल्विक फ्लोरोकोन नीड्स रिहैबिंग। वो जो टिपिकल मॉमी पूछ होता है जो कि पेट लटक रहा होता है, दैट इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। अगर आपको अपने ये कमर के पिछले हिस्से में दर्द रहती है, जिसको एसआई जॉइंट कहते हैं, या प्यूबिक सिम्पसिस जो आपके दर्द, ये ब्लैडर के ऊपर वाली हड्डी होती है, वहां पे दर्द रहती है, तो ऑल दीज थिंग्स आर pelvic floor, specifically pelvic floor के issues. Like I said, why this matters in Pakistan? Because पाकिस्तान के अंदर औरतों के लिए कुछ भी नहीं है फिलहाल, एटलीस्ट ये वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। And this gap really needs to be filled. And I'm so glad that at least people are more knowledgeable about doulas and midwives as well now. पहले they weren't very knowledgeable about this as well. Gynecologists do have a role to play. I'm not denying that, but they are not like each and everything. So there are other gaps which need to be filled. औरतें बहुत साइलेंटली सफर करती हैं, कोई अवेयरनेस नहीं है पेल्विक फ्लोर थेरेपी के। देयर आर कल्चरल बैरियर्स अराउंड डिस्कसिंग पेल्विक हेल्थ, हम नहीं डिस्कस करते एक दूसरे के साथ। फेलो खवातीन भी आपस में बहुत कम डिस्कस करती हैं, बट नहीं होना चाहिए। ओके, so we'll talk a little bit about कि incontinence क्या होती है, since everyone is most interested in this, and I want कि हम कोई मिलके एक बहुत बड़ी रिसर्च करें जिसके अंदर हम बहुत बड़ा सैंपल साइज ले सकें, कोई लाखों में पाकिस्तानी खवातीन का। तो आई एम प्रिटी श्योर इसके अंदर 80% तो इनकॉन्टिनेंस निकलेगी। मतलब दिस इज नॉट वेरीफाइड स्टेटिस्टिक, बट आई एम प्रिटी श्योर कि काफी इनकॉन्टिनेंस है पाकिस्तान में। खांसने से, छींकने से, अगर आपको कतरा लीक हो रहा है या यूरिन लीक हो रहा है, तो दैट इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अगर आपको बार बार बाथरूम भागना पड़ रहा है, तो दैट इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अगर आपको महसूस ही नहीं होता और कोई पेशाब निकल आता है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस, वेरी कॉमन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, वेरी इजीली ट्रीटेबल। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की हमने बात कर ली। लाइक आई सेड, अर्ली रिहैब प्रिवेंट्स वर्सनिंग।
हेमरॉइड्स आर नॉट प्रोलैप्स। हेमरॉइड्स आर नॉट प्रोलैप्स। हेमरॉइड्स वेन्स होती हैं जो कि स्वेल कर जाती हैं आपकी। दे आर ऑल्सो वेरी कॉमन टू सी, एक्सट्रीमली कॉमन टू सी आफ्टर गिविंग बर्थ। स्पेशली जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, आप स्ट्रेन कर रहे होते हो, तो आपकी वेन्स जो है वो स्वेल होने लग जाती हैं, विच इज कॉल्ड एज hemorrhoids. They can bleed, internal भी हो सकते हैं, external भी हो सकते हैं. Once again, this is all stemming from a tight and overactive pelvic floor. डायस्टिसिस की बात करते हैं, विच इज अ वेरी, अब तो इसके बारे में काफी अवेयरनेस आने लग गई है। सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो आप एक पहली इस साइड पे पिक्चर देख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड पे, सो दिस इज व्हाट योर एब्डोमिनल मसल्स यूजुअली आर लाइक, पेट के मसल्स। और प्रेगनेंसी में ये सेपरेट हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डायस्टिसिस। सब प्रेग्नेंट खवातीन को डायस्टिसिस होता है, मतलब उनका पेट के मसल्स खुल जाते हैं इन प्रेगनेंसी। बट मोस्ट के खुद ब खुद प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद चंद अरसे में वापस चले जाते हैं, 1 डेढ़ महीने में। बहुत सारों के वापस नहीं जाते। अब जिनके वापस नहीं जाते उसको फिर हम डायस्टिसिस की तरफ लेके जाते हैं। उसके अंदर हमारे पास ये होता है, अम, अ, एक तो आपने विड्थ भी देखनी होती है कि कितना वाइड है आपका डायस्टिसिस। फिर आपने ये भी देखना होता है कि ये जो इसकी डेप्थ कितनी है। अम, अगर आप इसको नहीं ठीक करते तो आप इस बात को समझ लो आपके मसल्स हट गए हैं सामने से, नीचे आपके सिर्फ ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। वो जो पेट का हर्निया है ना, उसकी सबसे कॉमन रीजन डायस्टिसिस है। एक मेरे पास बहुत एक दफा एकदम मुझे किसी पेशेंट का फोन आया जो कि काफी डिस्टर्बिंग किस्म का था। तो उस बेचारी को हर्निया हुआ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसके 4 बच्चे थे जो सी सेक्शन से हुए थे पिछले 15 सालों में। और उसके शौहर को हो गया स्ट्रोक, फॉलेज, जिसकी वजह से वो बेड रिडन हो गया। उसने अपने शौहर को ऑब्वियसली उठाना होता था बेड से, बिठाना होता था। एक ऐसे 4 सी सेक्शंस के बाद जिस औरत का डायलिसिस ऑलरेडी हुआ हो, जिसके पेट में स्ट्रेंथ ना हो, जब वो अपने कॉलेज जिदा हस्बैंड को उठाती थी, बिठाती थी, उठाती थी, बिठाती थी, तो उसके पेट के सारे कंटेंट्स बाहर आने लग गए, जो कि हर्निया की तरफ चले गए। तो दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ हाउ improper लोड बेयरिंग कैन लीड टू डायस्टेसिस, एंड डायस्टेसिस कैन लीड टू हर्निया। और ये चीजें अगर एक में ही साल में शो नहीं हो रही, 2 साल में शो नहीं हो रही, तो 10-15 सालों में जरूर शो होंगी। आई कैन गारंटी यू कि अगर आप अपने पेल्विक फ्लोर या कोर को या बॉडी की प्रॉपर रिहैब नहीं करते आफ्टर बर्थ, आई कैन गारंटी यू कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी में मसला ना आए। आप उस मसले को इग्नोर कर दें, आप उस मसले को माने ना, तो वो फर्क बात है। बट आई हैव टू सी कोई ऐसी औरत जो कहे मैंने तो 3 बच्चे पैदा किए, मुझे तो कुछ किए बगैर, कुछ ना मैंने किया और मुझे कोई मसला ना आया, ऐसे नहीं होता। उसके बाद वी हैव टेल बोन पेन। आई थिंक इसके बारे में चैट में भी काफी क्वेश्चंस आ रहे थे। हेरा कैन ऑल्सो वाउच फॉर मी कि ये जो कॉकिक्स पेन होती है, ये एक तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिथोटमी पोजीशन की वजह से भी स्टेम कर रही होती है। जब औरतें सीधा लेट के बर्थ कर रही होती हैं तो टेल बोन के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से टेल बोन की दर्द बिल्कुल निकल आती है। अब जो टेल बिल्कुल। बोन की दर्द होती है ना, वो वो मेरा ऐसे नहीं ख्याल होती कि डॉक्टर माहिन आपने इसमें से भी जितने भी मसाइल बताए ना, कोई कोई भी नहीं होगा कि जिसमें किसी को कोई एक ना हो, उसमें से कुछ ना कुछ किसी ना किसी को। दिस इज सो कॉमन, सो कॉमन। अभी आप बात कर रही हो, मैं सोच रही हूँ कि हाँ शायद ये तो मुझे शायद ये तो मुझे अपने अपने बारे में भी आ रही है ख्याल। तो मैं ये बहुत कॉमन है, बहुत सारी है। चीजें इसमें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। देखिए हीरा, जब हम और प्रेगनेंसी से गुजरते हैं ना, तो ये हो ही नहीं सकता कि हमारे साथ कुछ ना हो। मतलब हम एक चीज से गुजर रहे हैं, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन उसकी एक रिहैब भी होती है ना प्रॉपर तरीके से, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ बहुत जब सारी किसी चीजें काम करी हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बेबी की पोजीशन है, हर किसी का बर्थ का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, एक अलग नेविगेशन है। अब उसमें अब कैसे देखिए, वो जब कोई हमारे बोन्स की। पास क्रिकेटर होता है या फुटबॉलर होता है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन को जब चोट लगती है ना, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसको कोचिंग से पहले फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। अगर किसी का कंधा टूट जाता है या रिस्ट फ्रैक्चर हो जाती है या उंगली पे चोट लग जाए या पाँव पे या एसीएल टेयर या कुछ भी, तो पहले उसकी फिजियो होती है, फिर वो कोचिंग की तरफ जाता है। यहाँ पे इतनी बड़ी प्रेगनेंसी से मतलब एक प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, इतनी लाइफ ऑल्टरिंग चीज से हम खवातीन गुजरती हैं
लिटरली एक एक इंजरी होती है, ब्लड निकलता है, स्वेलिंग होती है, टेयरिंग होती है, और उसके बाद हम कहते हैं बस बॉडी तुम खुद ही हील हो जाओ और बस खुद ही कर लो, हमने तो कुछ नहीं करना, या ज्यादा से ज्यादा अच्छा हम पाकिस्तानी कुछ करें ना करें, वॉक कर लेते हैं, हम कहते हैं हम वॉक कर लेंगे, चलो बस ठीक है, आधा घंटा वॉक कर ली, घंटा वॉक कर ली, वेरी गुड। वॉकिंग से भी आपको सिम्टम्स नहीं बढ़ पता ये जाते वॉक ही करवाने के लिए कितना आपको मोटिवेट करना पड़ता है। अभी हम इतने सेडेंट्री हो चुके हैं। सिर्फ एक मैं कहती हूँ, मतलब आप सिर्फ ये कर लो, कुछ ना करो वो भी इतना मुश्किल है बहुत सारी खवातीन के लिए। बट दिस इज सो इम्पोर्टेंट, सो हैं। एंड आई इम्पोर्टेंट टू नो नो कि प्रोएक्टिव अप्रोच इज ऑलवेज बेटर देन रिएक्टिव अप्रोच, जिस तरह से आप कह रहे हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ तो केसेस या में वॉक इट वर्स एज वेल। ठीक है, इस तरह से होता है कि इफ योर बॉडी इज नॉट रेडी, तो आप 10,000 स्टेप्स चलना मत शुरू करो। वॉक का मतलब ये नहीं होता कि आप कह लो कि मैं 10,000 15,000 स्टेप्स चलना शुरू कर दूं इकट्ठे। यू ऑलवेज, कभी कभार खवातीन आके बता रही होती हैं मैं 10,000 स्टेप्स चलती हूँ और उनकी यूरिन लीकेज चल रही होती है मुसलसल, क्योंकि उन वॉकिंग इज अ हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी। अगर आप सीधा लेट के आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है एक्सरसाइज करने की, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आपके अंदर वॉक करने की स्ट्रेंथ होगी, एक्टिविटी वॉक करने की स्ट्रेंथ होगी, राइट? अगर आप ग्रेविटी बैलेंस्ड के साथ इतने वीक हो, तो अगेंस्ट ग्रेविटी आप कैसे एक्सरसाइज या कुछ कर सकते हो? तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। इन बेड एक्सरसाइजेस, वहां से अपनी मोबिलिटी शुरू करें। वॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमेशा स्टार्ट बाय 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट, 20 मिनट। मैं पेशेंट्स को कहती हूँ नोटिस करो सिम्टम्स कब आते हैं। अगर 12 मिनट वॉक करने के बाद आपको हैवीनेस फील हो रही है या यूरिन लीक हो रहा है, तो आपने 11 मिनट वॉक करनी है, 12 मिनट नहीं करनी। और फिर वहां से अपनी स्टेमिना बिल्ड करना है। मोस्ट ऑफन टू मच वॉकिंग ऑल्सो कॉजेज प्रोलैप्स, टू मच वॉकिंग कॉजेज लीकिंग, या वॉकिंग ऑन improper footwear, walking with an improper stride. So walking is good, but once again, so I don't know how else to explain it. Like walk is important. मैं किसी को ये नहीं कह रही walk ना करो, but you have to make basically sure कि आपका बाकी सब कुछ movement ठीक should, है। yeah, like movement should not be, this is what we like, it should be a celebration, not that is, you know, some This symptoms to celebration appear के or बाद some pain to appear. Yeah. बॉडी हमें हमेशा साइंस देती है, बॉडी हमें हमेशा सिग्नल्स देती है। वो पेन देगी, हैवीनेस देगी, कुछ ना कुछ बॉडी जरूर बताती है कि मेरे साथ कुछ मसला चल रहा है। हम उसको इग्नोर करें तो वो और बात है। अच्छा, ये जो टेलबोन की हम बात कर रहे हैं ना, ये दिस इज वेरी कॉमन, ये देखने को मिलता है। खवातीन बल्कि आती हैं टेढ़ी मेढ़ी टेलबोन्स के साथ भी। किसी की टेलबोन उधर गई होती है, किसी की टेलबोन उधर गई होती है, किसी के अंदर गई होती है, किसी की बाहर को निकली होती है। these need to be treated and addressed as well. किसी की ये जो पेल्विक फ्लोर के, जिस तरह आप नीचे देखे पूरे पेल्विक फ्लोर ऐसे टेढ़े हुए होते हैं, एसिमेट्रिकल हुए होते हैं, किसी का ऐसे गया होता है, किसी का ऐसे गया होता है। अब जब पेल्विक फ्लोर ऐसे टेढ़ा हो जाता है, पूरी स्पाइन साथ अफेक्ट हो रही होती है, उससे कंधे अफेक्ट हो रहे होते हैं, नीचे पाँव, घुटने, all of the body is getting affected by the change in the alignment of the pelvic floor. Marital issues. So we have vaginismus, which is very, very, very common. जब मैंने pelvic floor therapy start की, तो I was a little bit hesitant talking about vaginismus, of course, as a देसी पाकिस्तानी woman. But then I was like कि थोड़ा थोड़ा करके, and then I started to realize कि बहुत ज्यादा there were issues about vaginismus going on, and then I started speaking up more about it, and it is extremely common and extremely dismissed. Patients would come to me and they would tell me कि गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा है कि आप बोटॉक्स करवा लें, या आपको तो कुछ भी नहीं है, हमने आपको एग्जामिन किया था, आप बिल्कुल ठीक है, आप बेटा थोड़ा सा बर्दाश्त करो, आप थोड़ी सी पेन किलर मेडिसिन ले लो, आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, इतना तो होता है। ऐसे नहीं होता। वैजिनिस्मस इज a रियल कंडीशन इफ योर मसल्स आर टाइटनिंग अप, या एंड ऑल्सो ये जो इंटरनल एग्जाम्स हो रहे होते हैं ड्यूरिंग लेबर या ड्यूरिंग बर्थ से पहले आ रहे हैं, दे आर इंटरनली एग्जामिनिंग यू ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगैन इन अ वेरी वियर्ड तरीके से, विदाउट एनी कंसेंट, विद वेरी अथॉरिटी के साथ, ऑथोरिटेटिव वे के अंदर। आई डोंट नो, लाइक दिस इज ऑल्सो मेस्ड अप, दिस शुड नॉट हैपन। दिस ऑल्सो समटाइम्स एग्रेवेटेड vaginismus। तो अगर किसी, एंड
So we are a kind of society. मतलब अगर ये चीज इतनी छोटी लगती है ना, जैसे वैजिनल एग्जाम है, बट इट एक्चुअली लीड्स टू सो मेनी प्रॉब्लम्स. It leads to trauma. So many women report trauma just because of these exams. So I And literally there are have had women, yeah. so many बिल्कुल. patients go for elective C-section just because they have vaginismus. They're like कि हम C-section करवा लेते हैं because हमें तो vaginismus है, we will not be able to give birth vaginally. I have patients of C-section जो because of vaginismus they like even if I counsel, the gynecologists are sometimes so adamant. They're like सी सेक्शन में क्या मसला है, सी सेक्शन में क्या मसला है, इजंट दैट इजियर, क्यों अपनी जिंदगी मुश्किल करनी है, गो फॉर सी सेक्शन, बेबी का वेट ज्यादा हो गया, ये हो गया, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है ना इश्यूज आ रहे हैं. एंड देन जो That's where अनमैरिड बच्चियां childbirth हैं. preparation comes, I guess. That's where when you were talking about collaboration and working under this umbrella, this is where the importance comes. कि childbirth preparation कितनी important है. Not everyone, doctors cannot educate you. हम हमेशा से यही कहते हैं ना कि जब आपको पता चलता है कि आप when you find out you're pregnant, हमारा पहला होता है कि हम डॉक्टर ढूंढे. और लेकिन हमें पहले सोचना है, हमने अपने माइंडसेट को ठीक करना है कि हमने पहले अवेयरनेस लेनी है कि हमने उस डॉक्टर को चूज कैसे करना है, हमने हॉस्पिटल चूज कैसे करना है. ये ट्रू. अवेयरनेस पहला स्टेप एजुकेशन है. पहला स्टेप ये नहीं है. सो दे कैन नॉट बिल्कुल बिल्कुल. एजुकेट यू. दीज आर और है ना, वेरी वेरी. अनमैरिड बच्चियां भी, अब जो अनमैरिड वुमेन अराउंड, दिस इज एन एरा वेयर इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर. They hear from their friends and everyone कि it's always going to be painful. You will have to bear through it. इसमें तो bleeding भी है, ये भी है, वो भी है. Um, अगर देखे, this is a sensitive topic to talk about, but you need to understand emotions matter a lot. ठीक है, mental state matters a lot. If you're already very stressed and very emotionally um, fearful about it, so something can become worse for you than it has to be. That's all I'll say about it. ठीक है. दैट इज 100% करेक्ट. हम तो यही पता था कि अच्छा, मैं अपनी क्लासेस में 5 कीज पे फोकस करती हूँ. उसमें सबसे पहला फियर एड्रेस करते हैं, माइंडसेट. हर चीज से Exactly. पहले माइंडसेट है. If you have your nutrition, you have your movement, you have the knowledge, you have everything, but you don't have that mindset, and all you're getting, the majority of the things that, अब वो इसीलिए क्योंकि जो आप बता रही हो प्रैक्टिसेस, उनकी वजह से जो स्टोरीज पहुंच रही हैं आज की लड़की को, उस वजह से वो नहीं जाना चाहती उस प्रोसेस के थ्रू. उसको True, लगता है true, ये true. नॉर्मल है. वो नॉर्मल नहीं है. सो व्हेन डॉक्टर्स, व्हेन दे आर सेइंग कि यस हमने इस पे काम करना है, कि हमने वैजिनल, हमने जीसी सेक्शन के रेट कम करने हैं, हमने, इट्स नॉट जस्ट कि हमने वैजिनल बर्थ के रेट्स इंक्रीज करने, हमने ये इंक्रीज करना है कि वो नॉर्मल बर्थ नॉर्मल तो फील हो. ये इस फिजियोलॉजिकल बर्थ का ये मतलब है. सो दिस I इज know. व्हाट द यंग गर्ल्स आर गेटिंग. वो Yes, इस बिल्कुल. माइंडसेट से आ रही है, और माइंडसेट अगर आप एड्रेस नहीं करोगे तो कोई भी चीज काम नहीं कर सकती. नो प्रेप, नो फिजिकल प्रेप, नो, नो नॉलेज, नो न्यूट्रिशन. Fear is the enemy of labor. It's as simple as that. Because वो True. आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ना. when you have a tiger, अपने हेड में आप एक टाइगर से, अभी भी अगर हम इमेजिन करें अपने माइंड्स में कि हम किसी से डर रहे हैं, हमारे सामने कोई टाइगर आए, तो हमारे मसल्स, हमें खुद फील होगा कि हमारे मसल्स रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, एकदम से कोर के मसल्स टाइट हो जाते हैं, पेल्विक फ्लोर टाइट हो जाता है. दैट इज नॉट वर्किंग फॉर बर्थ एट ऑल. सो या, माइंडसेट कम्स फर्स्ट. दैट्स You know, लाइक when I आई एग्री. started speaking up about vaginismus in my friend circle and social circle, so many women were like, "ओ अच्छा, तो हमें vaginismus था, मुझे भी शादी के शुरू में था, but कुछ सालों के बाद ठीक हो गया." It is sad to hear. And they were like, अब okay है, मतलब अब it's not like उतना बुरा अभी, but it's not वो वाला भी जो हमने फिल्मों ड्रामों का सुना हुआ है, वो it's okay. Like there is still pain but bearable, ये वो, which is sad to hear. Which is very very sad to hear, and it makes you understand how common it is. So moving on to pregnancy and birth prep, हिरा ने जिस तरह बताया, when you get pregnant, so gynecologist के पास तो आप जा रहे हो, start finding a childbirth educator first. That person is more important for you. अगर आप जिंदगी में हर चीज की prep कर रहे हो, तो why not prep for your birth? It can help you by reducing pain. It can prepare you for labor. It can prevent trauma, and just it. You need to have a tool set.
कि बर्थ इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह जा सकती है, एंड आउट ऑफ ऑल सिनेरियोज मुझे क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। यू शुड ऑलवेज नो योर ऑप्शंस, कि मेरी ये ऑप्शंस हैं, अगर ये हो तो ऐसे है, ऐसे हो तो ऐसे है। सो यू शुड ऑलवेज हैव योर ऑप्शंस सो यू कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। पोस्टमार्टम रिकवरी की बात करें तो लाइक ऐसे पोस्टमार्टम में लीकेज, प्रोलैप्स, वीकनेस, पेन, ये सब कुछ देखने को मिल रहा होता है। सी सेक्शन रिकवरी, सेफ रिटर्न टू एक्सरसाइज, दिस इज ऑल कवर्ड इन पेल्विक फ्लोर की हेल्थ। बिल्कुल अर्ली विद इन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट भी होती है। फिर देर इज नेक्स्ट चिला पीरियड की जो होती है, फिर उसके बाद आफ्टरवर्ड्स। बट द मोर द अर्लियर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, the lesser and lesser you need it later on. And it is never too late to start. अगर अब एक बच्चा हो गया, it can help you with the second one. अगर दो बच्चे हो गए, it can help you with the third one. अगर बच्चे हो चुके हैं and you're not towards kids anymore, it can help you with menopause. So starting at any time will always be beneficial for you. So ये थोड़ी सी मैंने I thought कि I will teach everyone about breathing. This is what I always start in my clinic with. के करेक्ट वे टू ब्रीथ, नन ऑफ अस इज ब्रीदिंग करेक्टली। सबसे पहले तो जब पेशेंट आती है पहला सेशन, तो उसको होमवर्क, सबको होमवर्क मिलता है, ऑल माय पेशेंट्स कैन वाउच फॉर इट। उनका पहला होमवर्क होता है घर जाके कोर और ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करके आओ। सो व्हेन यू इनहेल, जब आप सांस नाक से खींचते हो तो आपका पेल्विक फ्लोर खुलना चाहिए और सांस बकायदा नीचे पेल्विक फ्लोर तक जानी चाहिए। अगर आप अपने हिप्स के ऊपर हाथ रखो और नाक से सांस खींचो, तो आपको नीचे हिप्स के अंदर बकायदा सांस आती हुई फील होनी चाहिए। इट माइट साउंड रिडिकुलस टू समवन, बट जो सही सांस ले रहा हो तो उसके हिप्स ऐसे नीचे, अगर आप हिप्स पे हाथ रख के बैठोगे ना या खड़े होगे, तो आपको हिप्स मूव होते महसूस होंगे इफ यू आर इनहेलिंग प्रॉपरली। और जब आप एक्सेल करो तो आपका पेल्विक फ्लोर नेचुरली ऊपर जाना चाहिए। जब आप इनहेल करो तो आपकी रिब्स खुलनी चाहिए, जब आप एक्सहेल करो तो आपकी रिब्स बंद होनी चाहिए। अगर आप ऐसे सांस ले रहे हो ना कंधों से, तो आप बिल्कुल गलत सांस ले रहे हो। आपके कंधे ऊपर नीचे नहीं मूव करने चाहिए। कंधों का काम सांस लेना नहीं है। कंधों को ना अल्लाह ताला ने बैकअप बनाया था कि अगर कभी के लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हो, रिब्स या डायफ्राम ना काम कर रहे हो, तो ये कंधे बैकअप हैं। हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इनको फ्रंट लाइन पे ले आए हैं, कंधों को मेन काम दे दिया और रिब्स को हमने छुट्टी दी हुई है, जिसकी वजह से सारे मसले देखने को मिल रहे होते हैं। करेक्ट कोर एक्टिवेशन की बात करेंगे। ये जो मॉमी पूछ, जो खवातीन कहती है हमारा पेट लटका हुआ है, पेट लटका हुआ है, आप इस तस्वीर में अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि पोस्चर का क्या मसला होता है। पेल्विक फ्लोर का भी बेड़ा गर्क, पेट भी लटका हुआ, रिब्स भी नीचे को, कंधे, शोल्डर्स, हिप्स, एवरीथिंग इसमें खराब हो जाती है। जस्ट बाय प्रॉपर कोर एक्टिवेशन, पेट को ठीक करने से अब आपके पीछे से हिप्स, आपकी कमर, आपके शोल्डर्स, आपके नीज, आप योर नेक, एवरीथिंग गेट्स फाइन। This was all for my presentation. And so over to you and to the participants here. Chala, let's go for the questions in the chat first. Um, so we have, just a second. Tailbone pain, leakage issues started in pregnancy, not before. So during pregnancy, is it normal to have leakage issues? And या वो औरतें समझे कि हम ये ठीक हो जाएगा, खुद से ही ठीक हो जाएगा आफ्टर बर्थ? एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ अगर आपका एक भी कतरा यूरिन का लीक हो गया है, तो आप रेड फ्लैग में आ गए हैं, रेड डेंजर जोन में आ गए हैं। किसी भी जिंदगी के किसी भी मौके पे, प्रेगनेंसी हो, पोस्टमार्टम हो, एक कतरा लीक हो गया है, आप डेंजर जोन में हैं। अगर वो एक कतरा लीक होके अगले 2 साल उसने मसला नहीं दिया ना, तो तीसरे साल दे देगा, बट इट विल नेवर गो अवे। अच्छा, हेमरॉइड के बारे में तो आपने बता दिया था. Should we treat prolapse during weight postpartum and pregnancy? If you are experiencing तो understanding है तो उसको एड्रेस फौरन करना चाहिए. ओके, सो मेरे पास इंटरेस्टिंगली काफी पेशेंट्स आती हैं प्रोलैप्स की वाइल दे आर प्रेग्नेंट। तो वो इसलिए आती है कि उनको फिर गायनेकोलॉजिस्ट ये बताती हैं कि अब क्योंकि आपको प्रोलैप्स है, तो अब हम आपको सी सेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वैजिनल डिलीवरी के अंदर तो आपका प्रोलैप्स वर्सन होकर हर्निया की तरफ जा सकता है।
Having said all of that, it is true कि it is very difficult to manage in pregnancy. बट जितनी भी मेरे पास पे पेशेंट्स आती हैं इन प्रेगनेंसी विद प्रोलैप्स, हम उसको इस तरह से करते हैं कि वी प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स। और ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के अंदर प्रोलैप्स को मैनेज नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल ग्रेड 2 पे है ना, तो अब प्रेगनेंसी के अंदर तो वो ग्रेड 1 पे नहीं जाने वाला, क्योंकि प्रेगनेंसी में बेबी इज ऑलरेडी पुशिंग द ऑर्गन एंड एवरीथिंग डाउन। आई कैन नॉट पुश इट बैक अप अगेंस्ट द बेबी, बट वी कैन स्ट्रेंथन एंड मेंटेन सपोर्ट ऑफ एवरीथिंग। एंड वंस यू हैव गिवन बर्थ, तो फिर प्रोलैप्स काफी हद तक वापस चला जाता है व्हेन देयर इज स्पेस। बट दैट इज लाइक इफ यू आर इन योर सेकेंड ट्राइमेस्टर। इफ यू आर इन थर्ड ट्राइमेस्टर और आपको प्रोलैप्स है, तो फिर आई वुड एम्फसाइज कि रादर देन गेटिंग प्रोलैप्स करेक्टेड, you focus on proper birth, where childbirth educators come in। आप कुछ ऐसी positions adopt करो जिसके अंदर there is minimal pressure on your pelvic floor। Go for sideline position, avoid gravity वाली positions, avoid standing squatting, avoid ये lithotomy position, reduce your pushing, try not to strain, release everything। So if you are in third trimester and you have prolapse, तो फिर उसके अंदर you have to be, you need to have your doula with you then। That's all I'll say to prevent it further। या ट्रू। इसमें बहुत बहुत हेल्प हो सकती है, अगर सिर्फ अगर हमें कुशिंग और बर्थिंग पोजीशंस को ही समझ लेना, तो आधी कहानी तो यहीं पे सॉल्व हो जाती है कि 90% वो मदर हाल है। लेट पुशिंग और अपराइट बर्थिंग पोजीशंस, या जिस तरह से प्रोलैप्स, या उसमें हम कह रहे हैं कि साइड लाइन, या जो भी उस पर कंफर्टेबल है, अगर इसी चीज को हम लाना शुरू कर दें प्रैक्टिस में, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स। और इसमें हमने सबसे बड़ी बात एक और डिस्कस नहीं की कि ये जो हमने एपिजियोटमी की जो हम प्रैक्टिस देख रहे हैं इतनी प्रेवलेंट, उसका आप मुझे बताएं, उसका उसके बाद आपको क्या क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं? अच्छा, सो हेरा, तो आपका क्या एपिजियोटमी, टेक है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? या एपिजियोटमी देखें, नथिंग इज evil और inherently wrong हाँ, except for lithotomy position। जो एपिजियोटमी है ना, इट हैज इट्स रोल समटाइम्स इन सम वेरी स्पेसिफिक केसेस। आई वुड से कि एपिजियोटमी इज बेनिफिशियल। बट जिस तरह यहाँ एपिजियोटमी की जा रही है, आई वुड से कि एयर ऑन द साइड ऑफ कि दिस इज नॉट गुड। जिस तरह अगर आपकी बॉडी में कहीं और भी कट लगता है ना, या सी सेक्शन का स्कार होता है, एपिजियोटमी के स्कार नहीं फिर उस तरह से हील होता। वो एरिया एक टाइट रहता है। व्हेन आई डू इंटरनल एग्जाम्स आई कैन टेल कि इसकी यहाँ एपिजियोटमी हुई होगी, वहां एक पूरा बैंड ऑफ टाइटनेस आ रहा होता है पेल्विक फ्लोर में, which is giving issues with constipation, which is giving them pains, which is giving them tightness। इस किस्म के सारे इश्यूज एपिजियोटमी से आ रहे होते हैं। So try to avoid it as much as you can। एक्चुअली ना, अभी तो हम जनरल ऑडियंस पे फोकस कर रहे हैं ना। इन द लॉन्ग रन वी नीड एन अवेयरनेस सेशन विद द गायनेकोलॉजिस्ट, जिसके अंदर हम उनको बताएं और सिखाएं, इफ दे आर विलिंग टू लर्न, कि ये चीजें मत करें, और या व्हेन टू डू देम, हाउ टू डू देम। हाँ, इट्स प्रिवेंटेबल। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी मच अवॉइडेबल, अगर आप ट्यून इन हो जाओ, अगर आप बर्थिंग पोजीशंस को ठीक कर लो, मदर लेट पुशिंग पे आ जाए, मदर काम हो, वो जो सारा मैकेनिज्म है ना, हाउ दैट प्रोसेस वर्क्स, breathing the There are baby some out, very there good are so clinics many as things. well who are well informed, I know, but mostly, I don't know, mostly are there with outdated practices। That is true. I know for a fact कि majority 99, 98, 99 maybe percent of doctors have never ever seen a birth without an episiotomy, and they cannot imagine not cutting an episiotomy, not having that pair of scissors. They cannot imagine that. And I have Because had, that's their comfort zone ना, that's yes, their niche, it's their comfort zone कि हम इस तरह से कर लेते हैं, and will yes. And I've like, had mothers, because when mothers come and then say, कि then they're overstitched many times. अब उसके yes, बाद की खैर प्रॉब्लम्स अलग हैं, अब उसमें मैं जाना ही नहीं चाह रही, क्योंकि वो एक अलग ही इतना एक लंबी एक वो भी एक डिस्कशन है। बट देन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज, तो इसमें बात समझने की बस ये है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज प्रोएक्टिव अप्रोच। और जिस तरह से हम अपनी लाइफ के बड़ी बड़ी चीजों, मतलब हम जिस तरह से किसी चीज के लिए शॉपिंग करते हैं, या हम शादी के लिए शॉपिंग करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा अहम है कि हम इन
अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट करें, अपने आप को इन ट्रांजिशंस के लिए प्रिपेयर करें, आप इन प्रॉब्लम से बच जाएं, प्रिवेंट कर लें इनको, पहले ही प्रिवेंट कर लें। आई सो थिंक हमें लोगों को चाइल्ड बर्थ कोर्सेज या पेल्विक फ्लोर थेरेपी भी गिफ्ट करना शुरू कर देनी चाहिए, लिटरली एज गिफ्ट्स, कि ये मेरी तरफ से, यू आर प्रेग्नेंट, दिस इज माई आई गिफ्ट फॉर ऑलवेज यू। से दैट, आई ऑलवेज से कि अगर आपकी किसी दोस्त की शादी हो रही है या आपके किसी, तो दिस इज अ वंडरफुल गिफ्ट टू गिव देम, लाइक दे विल चेरिश इट फॉर वंडरफुल। लाइफ। आप या ऐसा गिफ्ट दो ना जो वो पूरी जिंदगी उसके काम आएगी, बल्कि उसकी नस्लों के काम आएगी। सो या या सो लेट्स okay, टेक let's सम get मोर it back. Yeah, my 16-year-old daughter has urge to pass urine quite frequently. What could be the cause? uh, we'll have to do a full assessment. It could be anything. 16 years की है, कहाँ से आ रहा है? Does she have scoliosis? Does she have flat feet? Does she have any birth defect? कब शुरू हुआ? किस तरह का है? If you can just reach out to me after this, तो I'll share a form. ये जिन्होंने भी question किया है, ask, please fill it, and it will give me a better idea of where to start with. Or what I can do is, so I have this Hira preliminary pelvic floor assessment का form, which helps me understand के, which gives me a basic idea of किसका मसला कहाँ से शुरू हो रहा है. So what I can do is I can share it with everyone who is interested in filling out and screen their problems. And so everyone who wants to take consultation, you wants to fill out the form from this webinar, will give we will give some discount to everyone who's coming from this webinar, for the That's participants of this meeting. You just have to that's mention, जब आप मुझे मैसेज करें personally, तो do mention कि you are from Birth Matters, so that I yeah. will know. So if you mention this, so I'll give you a discount about it, inshallah. Jazakallah khair, Dr. Mahina. I think that is No, such a beautiful gift that you just offered. Jazakallah yeah, khair. madam. No, I think everyone from this, you just have to mention, and we'll do something, inshallah. Okay, so let's get All on to right, more we questions. have, I've had tailbone pain for years, even before any pregnancy. Once again, Afifa. why? क्या आपको कॉन्स्टिपेशन रहती थी बहुत ज्यादा, या आपका बहुत ज्यादा बैठने का काम है? अगर कोई हर वक्त बैठा रहता हो, तो देयर इज अ मसल कॉल्ड एज पिरिफॉर्मिस, जो कि टेलबोन के साथ लग रहा होता है। ये अक्सर बहुत टाइट देखने को मिलता है। कुछ लोगों को हर वक्त टांगे क्रॉस करके बैठने की आदत होती है, उनके अंदर भी टेलबोन का मसला देखने को मिलता है। सो वही, आप जो भी मुझे मसला बताओगे ना, मुझे ये मसला है, हमेशा अप्रोच विल बी टू फाइंड कि वो शुरू कहाँ से हुआ। इट्स, मेरे पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं पड़ी हुई कि ये मसला है तो भाई इसकी ये ट्रीटमेंट है। इट्स नॉट लाइक दैट। वी ऑलवेज हैव टू फाइंड द रूट कॉज। टेलबोन पेन है, Yeah, कहाँ से आई? yeah. इनकॉन्टिनेंस है, कहाँ से आई? वी नीड टू ट्रीट द रूट कॉज, एंड फॉर दैट वी नीड हिस्ट्री। लेकिन फिर उसमें असेसमेंट के बगैर आप नहीं जान सकते कि कहाँ से ये चीज अराइज हो रही है। तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसका फायदा है, या व्हाट डू यू यस, सजेस्ट? कंसल्टेशन, वी कैन टेक ऑनलाइन कंसल्टेशंस। कुछ केसेस ऐसे ऐसे होते हैं जिसके अंदर ट्रीटमेंट कैन बी डन वर्चुअली एज वेल, तो उसके अंदर तो वी आल्सो डू वर्चुअल सेशंस। बट मोस्ट ऑफ द कंडीशंस नीड इन पर्सन ट्रीटमेंट। तो उसके लिए फिर मैं हमेशा इन पर्सन ही बुलाती होती हूँ, बट कंसल्टेशन कैन बी डन ऑनलाइन, इसमें कोई इशू नहीं सो आई हैव हैड, ओके, है। ओके, सो आई आल्सो see a question. वुमेनाइज। So someone is asking, you mentioned Kegels don't help with pelvic floor strengthening. Then how to work on pelvic floor during pregnancy? देखिए, कीगल्स प्रिस्क्राइब करने का एक टाइम होता है। टाइम इट्स होता है, नॉट, जैसे टाइम एंड प्लेस, या हाँ हाँ, इट्स नॉट लाइक ए कीगल हर मसले का हल है, जिसका वॉक हर मसले का हल नहीं है। हाउ टू वर्क जैसे ऑन पेल्विक फ्लोर ड्यूरिंग। जैसे आपने इन मेडिकल इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, जैसे हम किसी भी चीज के बारे में बात, थियोटमी के बारे में बात करें, कोई भी चीज विलेनाइज नहीं है, बस हम कभी कभी बहुत सारी चीजों को ओवर प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमने उसको कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। प्रेगनेंसी के अंदर जो आपका पेल्विक फ्लोर होता है ना, आपने प्रेगनेंसी के अंदर पूरी बॉडी पे काम करना होता है। वंस अगेन, नॉट जस्ट द पेल्विक फ्लोर, या पेल्विक फ्लोर, रिब्स, ये वो एटसेट्रा। या या एक टाइम आता है 34 वीक्स ऑनवर्ड्स, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बर्थ। उस वक्त आप प्रिपेयर करते हो पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स एंड लेट गो करने की। उससे पहले यू वर्क ऑन फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग। तो ट्राइमेस्टर वाइज, वीक्स वाइज,
डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज और बर्थ प्रेप्स होती हैं जो कि हमने प्रेगनेंसी में करवानी होती है, जो कि बहुत वास्ट टॉपिक है। लाइक देयर आर, लाइक आई सेड, पूरे चाइल्ड बर्थ एजुकेटर्स जस्ट टू गाइड यू थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, के पहले दिन से लेके आखिरी बर्थ तक आपने मतलब टिल योर ड्यू डेट आपने करना क्या है। मोमिना says how can I overcome the fear of normal delivery? सिर्फ डर से मेरा और हार्ट बीट हाई हो जाती है। मोमिना I there think there's nothing to so be scared many about women, in so normal many delivery. women. I think ये आप अकेली नहीं हो मोमिना, ये तो ये ज्यादातर लोगों का, लेकिन I have had mothers who turned this fear into confidence, and the first step is knowledge. Always knowledge turns fear into confidence. और जब आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है और आपकी बॉडी किस तरह से डिजाइंड है और आप उसके साथ कैसे काम कर सकते हो अपनी बॉडी के साथ, कि आप उस प्रोसेस को अपने लिए इजी बना सकते हो, कैसे आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं और क्या क्या चीजें उसको हेल्प करती हैं। तो we've had have beautiful birds. Yeah, so do let me know if you're interested in preparing for your birth, inshallah. Right, we are starting our next childbirth classes in the first week of May, and if anyone is interested, आज के सेशन में जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं और they want to join the childbirth classes, online childbirth classes that I'm offering, if you're like anywhere below 34 weeks, you will get an exclusive discount only for the people, only for the ones who are in this session today, right? So you can always DM, inshallah. Okay. Sony says how to get in touch. Scared about it. It's the same with normal delivery. हम एक दूसरे के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस सुन के समझते हैं कि अल्लाह ये तो हम दोबारा नहीं कर सकते, और हम बड़े फख्र से बताते हैं हाँ मजा आया। आई रिमेम्बर व्हेन आई गेव बर्थ, मेरे एक, आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ माय खाला आस्क्ड मी, हाँ जी बेटा मजा आया, दीज वर हर वर्ड्स, एंड आई वाज लाइक खाला अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आई नो कि इट कैन बी जो भी आप लोग बताते हो, बट इट्स नॉट उस तरह से जिस तरह मैंने सुना था कि पता नहीं मैं शायद मौत के मुंह से होके वापस आऊंगी। कुछ औरतों के साथ होता भी है, बट दीज आर प्रिवेंटेबल। हर एक ने मौत के मुंह में नहीं जाना होता, अल्लाह मुझे माफ कर दे फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि बर्थ डजंट हैव टू बी ट्रोमैटिक। अल्लाह ने एक नेचुरल चीज बनाई है, तो व्हाई वुड अल्लाह मेक इट ट्रोमैटिक उस तरह से। हर चीज को मैनेज करने के तरीके होते हैं, बर्थ प्रेप एंड एवरीथिंग, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। इसमें कुछ मतलब जस्ट टेक हिरा की क्लासेस एंड आपकी बर्थ अच्छी जाएगी इंशाल्लाह। I know. इसमें ना, obviously how much you're willing to put in, how much you're willing to work on yourself, because आपके सामने ऐसे लोग तो होंगे, हर टाइम होंगे, हर टाइम ऐसी बातें भी सुनने को मिलेंगी, but believe me, birth does not have to be traumatic. Birth can be the most empowering, the most beautiful experience a woman can go through. So ओके, I have हिरा birthed let's take three babies one myself. more I can tell you question. from my experience and many other experiences. अच्छा, आपके साथ कंसल्टेशन कैसे लेनी है, आपका नंबर जो है हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह ग्रुप में। या सो व्हाट वी कैन डू इज हिरा, ये जो आज के वेबिनार के पार्टिसिपेंट्स थे, आई कैन क्रिएट अ फॉर्म फॉर देम एंड मैं इस तरह ग्रुप में शेयर करती हूँ, एंड जस्ट दे विल मेंशन इन द फॉर्म, आई आस्क इन देम आर यू फ्रॉम बर्थ मैटर्स, तो फिर उन सब Yeah. के हम इस तरह से जो है ना कंसल्टेशन अरेंज कर लेंगे। And I'll share the form and everything with you, and you can, I also share my number in the group so you can reach out over there. Thank you so much. Jazakallah khair, inshallah. That would be really helpful. What about We are endometriosis? Endometriosis का ताल्लुक है डॉक्टर माहीन pelvic floor therapy इसके लिए कोई ऑफर कर सकती है हेल्प एंड सपोर्ट? हाँ जी, अच्छा अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस इज ट्रिकी टॉपिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ना बहुत ही एंडोमेट्रियोसिस मिसडायग्नोज्ड है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट एंडोमेट्रियोसिस एंड इट इज डायग्नोज्ड एज एंडोमेट्रियोसिस। तो पहले तो यू हैव टू मेक श्योर कि क्या ये वाकई ही एंडोमेट्रियोसिस है, एंड इवन इफ यू हैव एन ओपिनियन, टेक अ सेकंड वन, टेक अ थर्ड वन, यू हैव टू मेक श्योर। दूसरी बात, एंडोमेट्रियोसिस कंप्लीटली पेल्विक फ्लोर थेरेपी से ठीक नहीं हो सकती। एंडोमेट्रियोसिस के लिए you have to take medicines along with pelvic floor therapy. So both of these things can help you and they have a lot of benefit. मैं ग्रुप में ना एक research article भी share करूंगी which proves the importance of pelvic floor therapy for endometriosis. But it alone cannot treat endometriosis. Yes. You have to combine it with your medications.
बिल्कुल। आप ये कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में जो भी होगी वो उसको ट्रीट होलिस्टिकली ही हम करेंगे। आई होप एवरीवन टेक्स दैट मैसेज अवे। कोई भी किसी चीज का एक यूं नहीं होता कि आप बस एक सिंगल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेके ये हो गया तो ये कर लो। तो क्या या कॉज है, किस वजह से हो रही है, हमें उसको देखना होता है इंशाल्लाह। ओके, यू मेंशनड। अच्छा, ये वाला तो क्वेश्चन हो गया था। आपकी तरफ झुक आगे की तरफ झुककर बैठने की आदत होती है, वो भी पेल्विक फ्लोर की वजह से होती है क्या? उसकी वजह से पेल्विक फ्लोर में टेंशन आ सकती हैं। या सो या पोस्चर मैटर्स। अगर किसी का डॉक्टर, है कोई स्पेसिफिकली पेल्विक फ्लोर रिलेटेड क्वेश्चन तो प्लीज दोबारा जरा चैट में लिख दें। yeah, please do. Hafsa says yes, Hera, next session with OB guys. I would love to if they're willing to. I want to just give out a message here. I am looking for doctors here. I'm looking for doctors who have the ability to question, who have the ability to ask the bigger questions, who want to offer evidence-based care. I am looking for such doctors. Please connect with me. We Please have do. lots of gynecologists with us in the chat as well. Yeah. I see someone messaging gynecologists listening here. Will love to hear from you people that how episiotomy can be avoided in primary gravida I patients because we don't prefer episiotomy multipara, but in primary gravida it is a strong indication. This is Dr. R. Dr. R, please reach out to me after this, and I think we should arrange a session with मैंने you. इसके ऊपर स्पेसिफिक एक आयशा हजार के साथ, अमानी बर्थ की फाउंडर के साथ एपिजियोटोमी पे सेशन किया हुआ है। मैं उसको आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जो भी इधर गायनाकोलॉजिस्ट हैं या मदर्स हैं, जिसने भी देखना हो वो जरूर उस सेशन को देखें। इट वाज सच अ डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव सेशन दैट वी डिड। उसको And I feel जरूर like it देखें। is in या collaboration with the gynecologist. मतलब उनकी हम birth prep करें, then they go for delivery and then they come for pelvic floor therapy. सबका काम आसान हो जाए। Like even the gynecologist को मैं इस बात को गारंटी करती हूँ कि आपको नहीं करनी पड़ेंगी episiotomies जब आपकी patients prepared होंगी for labor प्रिपेयर्ड and for आएंगी। pregnancy. आई टेल देम जब आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो ना, जब आपके पास फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए कोई आता है तो आप उसको प्रिस्क्राइब कर दें चाइल्ड बर्थ क्लासेस। जब आपके पास कोई लड़की आ रही है ना और वो कह रही है कि मैं सोच नहीं सकती एपिड्यूरल के बगैर बर्थ देना, तो आप उसको कहें, तुम जहां आप उसको एपिड्यूरल बताएंगी आप उसको चाइल्ड बर्थ क्लासेस बता दें। मे बी आई एम नॉट अगेंस्ट द यूज ऑफ Again, epidural or any yeah. medical intervention. There is always a time and place, but I'm just saying that we are built for this. And, with the right knowledge and support, most of us are able to give birth naturally. If I vomit during the first trimester and urine leaks while vomiting, is this a problem? Yes, Yes. Okay. it is. I want to do therapy with you. Okay, ये हो गया. And if we are in the third trimester, there's no prolapse, but viral cuffing infection के during urinary incontinence हो जाए, which resolves after the cuffing goes away. Does this mean I need to work on strengthening the pelvic floor? जो क्वेश्चन की समझ नहीं आई। ये है कि वायरल कफिंग के दौरान अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाए, जो कि कफिंग के बाद ठीक हो जाए खुद से, तो फिर भी पेल्विक फ्लोर को एड्रेस करने की जरूरत है। यस, अगर आपको कफिंग में हो रही है तो इसका मतलब कि अभी आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रेशर पे जाके लीकिंग आ रही है। ओवर टाइम की मजीद लीक होता जाएगा और आपको लेसर प्रेशर पे भी लीकिंग आने लग जाएगी। तो फिर ये थ्रेशोल्ड कम होता 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 नॉर्मल रूटीन की लीकिंग में चला जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट साइन कि अभी कफिंग पे आती है फिर नॉर्मली होने लग जाएगी। तो ट्रीट इट नाउ। Mahira says, I'm fourth month postpartum. My pelvic bone hurts every time I turn sides while lying. I had a natural birth. Oh my God. आई थिंक मुझे बताएं डॉक्टर माहिन, क्या आप वो वाली सर्विस ऑफर करती हैं? क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे नहीं पता, बट हमेशा से ना, बहुत पहले से एक 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 चीज होती थी कि हड्डियों को वापस जगह पे लाना है ना, क्लोजिंग ऑफ द बोन्स हुआ करती। अभी भी है, अभी भी सिखाई जाती है, अभी भी है, बट आई डोंट नो इफ दैट इज पार्ट ऑफ योर practice or scope of practice. But assessment of the pelvic bone is very important, I think, postpartum, कि वो किस स्टेज पे ना, वो लाइक जो आई आपने बात सेड कि की थी पोस्टमार्टम कि में वो भी किस तरह टेलबोन से। इधर जा रही होती है उधर जा हाँ रही हाँ, होती है। बिल्कुल वो वाली पेल्विक चीज, फ्लोर वो पूरे का वाली पूरा चीज। हिला होता है। ऑल ऑफ दिस कैन बी एड्रेस्ड।
Okay, okay. Sabah Imran, yes, please do send the form. Yes, she will, inshallah. This session is so helpful. You spoke about my case. It seems I had Thank undiagnosed you. weak pelvis floor from previous pregnancy, and this time I developed hernia as well. Hernia is, yeah. I gave birth 5 days ago to my second baby after 5 years. It was trial for VBAC, turned into an emergency C-section because of large baby size. But baby's head was not going down below zero. Now I'm having gas and difficulty while sitting and standing and moving. And when I sit, I feel pain in my left hip. Is it pelvic floor issue? How to deal with it? Once again, it could be. Hira will have to, like I said, do an assessment. So what I'm going to do is, I'll share the form with you people. Abhi to I'm going to leave from the clinic. Phir inshallah by tonight I'll share details how to reach out, how to take consultation. Just make sure that you all mention that you are here from Birth Matters webinar, so that we can arrange something for you. And then phir inshallah we'll address har ek ka masla and consultation individually inshallah. Okay, here it says how to make one's pelvic floor neutral to its original position if it's anterior pelvic floor. Oh my God. You come for an assessment. This is something that if you were, it does need to be addressed. क्योंकि आप अगेन जैसे डॉक्टर माही ने कहा था पूरी बॉडी इंटरकनेक्टेड है. जब हम अपनी प्रेग्नेंट मदर्स के साथ भी काम करते हैं तो हम इन चीजों पे फोकस करते हैं क्योंकि इसका आपकी बर्थ पे भी इम्पैक्ट हो सकता है. हाउ योर बेबी बिल्कुल. नेविगेट्स दैट प्लेस और कौन सी किस तरह से वो उसको नेविगेट करता है और आपकी प्रोग्रेस कैसी जाती है उससे बहुत ज्यादा ताल्लुक है. सो यस वी डू वर्क फ्रॉम प्रेगनेंसी और उससे पहले कर लो तो बहुत ही अच्छा है. बट वर्किंग ऑन optimal alignment is something that I really believe in. And I think Dr. Mahin would agree as well. Yes, बिल्कुल. I have no pain or other symptoms, but I have gained belly fat within the last 6 months, which didn't happen even after 4 childbirths. What could be the cause? Too many causes, I guess. Once again, it's all Yeah, assessment. We need to do. it's all assessment. Yeah. And we need. I need like detailed More history information. She about needs like more जो information. Yeah. I need information. It's not Yeah. like I said. इस तरह नहीं है कि मेरे पास एक ट्रीटमेंट बुक पड़ी हुई है. आप कहोगे ये मसला, मैं कहूंगी ये कर लो. ये मसला है, ये कर लो. कहाँ बिल्कुल से ऐसे. आया वो मसला, शुरू कहाँ से हुआ, दैट इज द रूट कॉज. और उसके लिए आई नीड योर इंडिविजुअल हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड. हो सकता है कि आप मुझे एक सिम्टम बता रहे हो जबकि मसला कोई और है, जिसकी बाकी चीजें शायद आपको समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से आ रही है. बट उसकी जड़ को पकड़ना, उसकी रूट को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. और मे बी देखिए अब हो सकता है कोई और वजह हो. बात सबसे अच्छी यही होती है कि हम एक दूसरे को रेफर आउट कर सकते हैं. राइट. तो अगर जैसे कोई मसला है हमें हमें लग रहा है कि भाई एक पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट इस चीज को ज्यादा अच्छा समझ सकता है तो हम उसको रेफर आउट कर देते हैं. उसी तरह डॉक्टर माहिन को अगर लगेगा कि भाई इस चीज में ये तो मेरा नहीं है, Sorry, ये Hira. कुछ So और मसला है तो उसको I have रेफर कर to देंगे. leave now. You have to leave now. Okay, and we Yes, are I done have with the to leave. questions as well. Alhamdulillah. Just the last one. Where do we mention that we attended this session? जब आप मुझे या डॉक्टर माहिन को मैसेज करके आप ये बता सकते हैं कि we attended the Birth Matters session, right? Inshallah I'll on the. और उसके अंदर I'll keep the option for you to mention. Don't worry. Okay, just now let's close in our session. Jazakallah khair, Dr. Maheen. I am so grateful that you took out the time for this. It means so much for me, for all the women who were able to attend and benefit from. Jazakallah. Jazakallah for having me, I Hira. would love to Jazakallah for एक having me. शहर में और हमें मिलना चाहिए. Oh yeah, we should. Inshallah, we will. We'll do इंशाल्लाह. something in person next time. बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, ऐसे करते हैं इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया आपके Thank you टाइम का. everyone for joining as well. Jazakallah for joining, and I hope that we can make more and more women aware about this, and help improve जो एक general situation of women health जा रही है in this country. And inshallah, let's reduce the suffering of all the women around us. Inshallah. बिल्कुल 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 बिल्कुल. All बिल्कुल right. यही बात. Everyone, okay. Jazakallah. I'll be taking my leave now. Jazakallah khair. Thank you so much for You're such an welcome. You have informative a great. session. It was really eye-opening, very informative. Thank you. Thank you for the knowledge. Thank you. Allah Jazakallah Hafiz. khair.
Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everybody. I will be closing off the session now. Um, जो भी आपके और मजीद सवालात हो आप डायरेक्टली डीएम कर लीजिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह. एंड लेट्स मीट another week with another session, helpful session, inshallah. Jazakallah khair for attending, everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.